Hi everyone, welcome to the session. So today in this session we are going to discuss about ILS Law College Pune. Okay, so now this is one of the very prominent colleges in India. अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में तो ILS and GLC एक ऐसे colleges हैं जिसमें आप NLU के बाद admissions ले सकते हो. So in this class we will be discussing about both 3-year and 5-year courses. So everyone, now you can also see on the screen few photographs from ILS Pune. Now this college is based on Pune, so obviously वहाँ काफी greenery है. Campus is huge and apart from that it's quite green surrounded by the hills. So वो हो गई beauty of campus. अब बात करते हैं कि आज इस सेशन में क्या क्या हम करने वाले हैं. So in this session everyone हम सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ठीक है, we will be discussing about what this college is, कहाँ पे है, एडमिशंस कैसे होते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, यहाँ तक कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, सो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड व्हाट द सिलेबस इज. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन द सेशन. सो विदाउट अ डिले लेट्स बिगिन विद द क्लास. बट बिफोर दैट गाइज, आई एम कृति. आई टीच लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट फॉर क्लाट स्टूडेंट्स. जो लोग क्लाट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं पिछले 4-5 साल से लाइक around 4 to 5 years I have been teaching them, and many of my students are in NLUs and in ILS college and GLC. ठीक है, so let's begin with the class guys. So सबसे पहले ILS में what is this college. ठीक है, let's discuss about the basic. कब establish हुआ था. So in 1924 everyone, so this college is very old. ठीक है, ये स्टेब्लिश हुआ था 1924 में. दैट मीन्स इट इज 96 years old. यस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया. ठीक है, अगर जीएलसी और आईएलएस की बात करते हैं तो जीएलसी इज ऑल्सो इन मुंबई. ठीक है, इनका एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट इज एमएससीईटी, एंड बोथ आर वेरी ओल्ड कॉलेजेस. ओल्डेस्ट इन एशिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस इन एशिया एंड इंडिया. Then after that everyone, this is affiliated with Savitribai Phule Pune University. ठीक है, and it has been rated A by NAAC. So NAAC is basically National Assessment and Accreditation Board, council. ठीक है, और ये वहां पे this college has been rated A. At some years में A plus भी rated था, but overall एक average rating A दी हुई है. That means it is a very good college. Then guys, अगर हम बात करते हैं courses की तो BA LLB के 240 seats are there. While अगर हम 3-year LLB course की बात करते हैं तो 180 seats इस college में है. ठीक है, इसके अलावा it is like one of the top colleges, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है. If I talk about the alumni base of the college, so everyone, now this is the college जहां से बहुत सारे chief justice आपको मिल जाएंगे. Some of the very prominent names are written on the screen, and these are actually some of the names. There are many more people who are quite well established in the field. ठीक है, they have been working as a corporate lawyer or the chief justice, or some of them are like in the civil service. ठीक है, some of them are even the former deputy prime minister of India. You can see governor of Maharashtra, even governor of Sikkim, like the फॉर्मर गवर्नर ऑफ सिक्किम, आई थिंक वो भी इसी कॉलेज से थे. ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट आर देयर, वोकलिस्ट आर देयर. सो यू कैन सी ऑल ऑफ दीज नेम्स आर वेरी प्रोमिनेंट नेम्स. ठीक है, सो ये सभी इस कॉलेज के एल्यूमिनाई बेस रहे हैं. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस हैज बीन वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस. दिस कॉलेज इज रिकमेंडेड बाय योर एजुकेटर्स ऑल्सो. दिस इज रिकमेंडेड बाय एवरीवन आउट देयर. ठीक है, अगर आप एनएलयू जा रहे हो, वेल एंड गुड. अगर आप एनएलयू नहीं जा रहे हो तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट शुड बी इन द लिस्ट. Okay, then everyone, this is the excerpt I took from the website of the college. So here is the president's chair. So basically अभी current president है मृदुला भटकर. ठीक है, she is also the former judge Bombay High Court से. Also she is the alumni of ILS. So my agenda to show you this is like the lady, the ma'am has been from the college. ठीक है, she has been the former judge and currently the president. So similarly guys, if you are in the college, you do get the exposure, you get to meet some prominent persons. ठीक है, you get to understand कि आपको किस तरह से आगे prepare करना है. So a college in my point of व्यू इज रियली गुड. अब अगर बात करते हैं कोर्सेज ऑफर्ड की, कौन कौन से कोर्सेज इस कॉलेज में ऑफर किए जाते हैं. ठीक है, सो पहला जो कोर्स है दैट इज LLB. There is LLM available. There are PG diploma available. BA LLB integrated course है. This is the integrated course everyone. This is 3-year LLB. ठीक है, this is like 5-year BA LLB. ठीक है, इसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं. प्रेजेंटली एनर्जी लॉ में ऑफर हो रहा है. नाउ एवरीवन, अगर आपको LLB में एडमिशन लेना है तो आपके मिनिमम 45% एग्रीगेट होना चाहिए इन योर ग्रेजुएशन. यानी इफ यू हैव टू टेक एडमिशन इन 3 year तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए. ठीक है, एंड आपको मिनिमम 45% चाहिए.
अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन अ डिस्टेंस लर्निंग मोड गाइस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 5 ईयर BLLB में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ओके, सो यहाँ पे ना दिस इज बेसिकली 12th, दिस इज नॉट ग्रेजुएशन डिग्री एवरीवन, ठीक है। दिस इज बेसिकली यू शुड बी 12th, ठीक है, एंड इक्वलेंट टू एनी स्ट्रीम, दैट मीन्स आप साइंस से हो, ह्यूमैनिटी से हो, आर्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको 12th एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 12th का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और कोई भी स्ट्रीम यहाँ पे रहेगी, मिनिमम 45% आपको यहाँ भी चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर PG डिप्लोमा ऑल्सो ग्रेजुएशन इज नीडेड एवरीवन, एंड फॉर LLM आपको चाहिए, आपकी LLB होनी चाहिए, ठीक है। सो एवरीवन दिस इज बेसिकली द कोर्सेज विच आर ऑफर्ड इन द कॉलेज। अगर बात करते हैं हम एंट्रेंस एग्जाम की, हाउ कैन यू टेक एडमिशन, सो दिस एंट्रेंस एग्जाम विल प्राइमरीली फोकस ऑन BA LLB courses एंड LLB कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर 12th, ठीक है। तो ये 12th के बाद का हो गया, दिस इज आफ्टर ग्रेजुएशन। हम बात करेंगे इन दोनों कोर्सेज के एडमिशंस के बारे में। सो एवरीवन, MSCET लॉ इज द एग्जाम जो आपको देना होता है टू क्वालिफाई फॉर दिस कॉलेज, ठीक है। सो MSCET इज महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 सेक्शंस आपसे पूछे, 4 to 5 सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज हेल्ड वंस अ ईयर। सो इफ हम एक ओवरव्यू देखें MSCET का, तो ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, बाइलिंगुअल होता है, दैट्स इन महाराष्ट्र मराठी एंड इंग्लिश, बिकॉज ये महाराष्ट्र का डोमिनेंटली एग्जाम है, तो ये मराठी एंड इंग्लिश में होता है। MCQ टाइप रहेगा, यू विल गेट द 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज फ्रॉम दोज ऑप्शंस, अपना आंसर्स आपको चूज करने होंगे। 120 मिनट्स का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चंस विल बी देयर, एंड एवरी क्वेश्चन विल हैव अ 1 मार्क, ठीक है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एवरीवन, कोई नेगेटिव मार्किंग MSCT में नहीं होती है, और 1 मार्क का आपका सारा क्वेश्चन रहता है। नाउ अगर अब मैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस एग्जाम की बात करूं, तो ओवरऑल द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस एग्जाम हैज बीन इजी इन ऑल द इयर्स, द लेवल हैज बीन वेरी इजी, बट देन कट ऑफ्स ऑब्वियसली सोर कर जाते हैं, ठीक है। देयर इज ऑल्सो समथिंग जो मैं आपको बताऊंगी अबाउट एडमिशंस। तो कट ऑफ यूजुअली हाई जाते हैं बिकॉज द पेपर इज इजी, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और नो नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है कि यूजुअली सब बच्चे सारा अटेम्प्ट भी करके आते हैं। नाउ MSCT इज हेल्ड वंस अ ईयर एवरीवन, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ फी की, तो अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एप्लीकेशन फी कितना देना होगा। सो एप्लीकेशन फीस बेसिकली 800 रुपीज, ठीक है। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, वी विल डिस्कस अबाउट ओपन कैटेगरी मींस अदर स्टेट्स। ओपन कैटेगरी यहाँ पे दूसरे स्टेट्स होते हैं, कितना कोटा है ओपन कैटेगरी का ये भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी इफ यू आर EWS और आउटसाइड महाराष्ट्र, ठीक है, JNK इमाइग्रेंट्स हो अगर आप, तो 800 आपको देना है। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, देन ₹600 इज योर एप्लीकेशन फी, ठीक है। अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जाम, आप एग्जाम में कैसे एलिजिबल हो गया, आप एडमिशन के लिए कैसे एलिजिबल होगी, तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट महाराष्ट्र CET 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, जो आप 12th क्लास के बाद करते हो, ठीक है। 12th के बाद दैट मीन्स व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जाम, ठीक है, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर MSCET, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप 12th में अपियरिंग हो या फिर 12th पास कर चुके हो। देयर आर 2 थिंग्स एवरीवन, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी 12th में है, जिन्हें बोर्ड देना है, इफ दे आर अपियरिंग फॉर 12th, ठीक है, देन गाइज यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम एट द सेम टाइम। अगर आप 12th पास आउट हो, अगर आप पास कर चुके हो 12th को, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। रिमेंबर एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू नीड टू प्रोड्यूस योर पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। दैट मीन्स इफ यू आर अपियरिंग फॉर 12th एंड यू विल गिव बोर्ड्स एंड देन टेक योर एडमिशन, देन यू कैन अप्लाई। मिनिमम आपको चाहिए 45% अग्रीगेट, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो 40% अग्रीगेट आपको चाहिए, ठीक है। If I talk about 3-year law program, that's LLB, when you are already a graduate, ठीक है, सो आपने BA किया है या फिर आपने कोई भी एनी ग्रेजुएशन आपने करा है और उसके बाद आप करना चाहते हो 3-year law program, then you should be a graduate. You can also be a postgraduate, it does not matter. Your minimum percentage should be 45 in case of general category, and reserved categories के लिए 40% आपका होना चाहिए। Now ये तो हो गया हमारा eligibility criteria. There is one more thing that you should know कि यहाँ पे अगर आप किसी आउटसाइड महाराष्ट्र से हो, अगर आप महाराष्ट्र को बिलोंग नहीं करते,
अगर आपने किसी और बोर्ड से अपना 10th या 12th किया है तो आपको एक ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। देयर आर टू केसेस, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते या फिर आपका जो 12th का बोर्ड है वो किस महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं है तो आपको एक ओपन कैटेगरी में यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। या फिर आप अगर महाराष्ट्र का डोमिसाइल प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, दैट मीन्स यू आर फ्रॉम अदर स्टेट, यू विल बी कंसिडर्ड इन दिस ओपन कैटेगरी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन, candidates appearing for class 12th examination, so somebody who is appearing, I think I've already covered this point before, ठीक है, उनको एग्जाम का फॉर्म भरना और एग्जाम देने के लिए दे आर लायबल, वो दे सकते हैं, लाइक दे आर सॉरी नॉट लायबल, दे आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। लेकिन अगर आपका 45% से कम आता है, लेट्स से आपका क्या होता है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, ठीक है, एंड अभी आपका 12th का रिजल्ट आता है ना, उसमें आपका 45% से कम है मार्क्स, तब आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। सो यू हैव टू मेंटेन दिस 45% इन 12th while clearing the exam to take the admission. Okay, remember that. Now everyone, अगर बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स की जो बेसिक फॉर्मल एजुकेशन अटेन नहीं करते, जो स्कूल नहीं जाते, जो ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम से अपना 12th करते हैं, दे विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर दिस एग्जाम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ समबडी इज कंसीडरिंग कि वो ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम के थ्रू 12th के एग्जाम दे, दैट मीन्स एक फॉर्मल एजुकेशन ना ले, स्कूल्स नहीं जाते हैं, आप इंडिविजुअली प्राइवेट तैयारी कर रहे हो 12th की, तब आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, सो दीज आर सम की पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर while taking the admission or while filling up the form. Now everyone, as we were discussing about the open category or the other state category, remember that there is 85% domicile for Maharashtra candidate, while only 10% जो seats होते हैं वो all India seats होते हैं। Now अगर BA LLB में अगर मैं आपको rough idea देती हूँ, if in BA LLB everyone there are 240 seats for ILS, I'm talking about ILS, ठीक है, अगर ILS में 240 सीट्स हैं तो 10% सिर्फ ऑल इंडिया के लिए रहने वाली है। ठीक है, दैट मीन्स 24 सीट्स जो हैं इसमें से वो ऑल इंडिया के लिए रहेंगी। इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग सीट्स हैं, ठीक है, वो लगभग कहाँ चली जाएंगी, वो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो एग्जाम में, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, सो ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता। माई ओन स्टूडेंट्स who had studied with me, they are presently in this college and in GLC as well. So if you're preparing well for the exam, I think you should not be concerned about the number of seats, because you just need one seat to be there in the college. Okay, so everyone, ये हमारा bifurcation हो गया सीट्स का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कोटा अबाउट द सीट्स। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो एवरीवन, एग्जाम पैटर्न की बात करी जाए तो सबसे पहले 5-year LLB प्रोग्राम के बारे में वील डिस्कस। सो देयर आर basically 5 sections here. As you know that exam is a 150 marks, so this is basically 150 marks का एग्जाम होता है। 120 minutes में आपको ये 150 क्वेश्चंस करने होंगे, and there is no negative, ठीक है, कोई भी नेगेटिव नहीं होता यहाँ। 5 sections में हमारा लीगल सेक्शन आएगा, जनरल नॉलेज इज देयर, लॉजिकल इज देयर, मैथ्स इज देयर एंड इंग्लिश इज देयर। इफ वी फाइनली bifurcate the questions, you will see there are 40 questions from legal reasoning, quite an important section, then 30 questions from general knowledge, 40 questions from logical, 10 questions from maths and 30 questions from English। ठीक है, ये हमारा फर्दर हो गया कि ये 5-year LLB का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इफ आई टॉक अबाउट 3-year LLB एग्जाम पैटर्न, देन वी हैव 4 सेक्शंस ओवर हियर। मैथ्स का सेक्शन यहाँ नहीं होता है, तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 30 मार्क्स, इंग्लिश इज ऑफ 50 मार्क्स एवरीवन, जनरल नॉलेज 40 मार्क्स एंड लीगल एप्टीट्यूड इज ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट सिलेबस, कैसे प्रिपेयर करना है हर सेक्शन को, सो वी विल डिस्कस अ कॉमन सिलेबस फॉर बोथ द एग्जाम्स। सबसे पहले शुरू करते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स से। सो एवरीवन, एज यू नो कि जीके के जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अगर आप क्लाट के पैटर्न में देखोगे तो यू वुड से कि करंट अफेयर्स डोमिनेट करते हैं। इफ यू सी एलिट में भी करंट अफेयर्स अगेन डोमिनेट करते हैं, मोस्टली लाइक मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट अफेयर्स। सिमिलरली एवरीवन, यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके, बट अगेन करंट अफेयर्स यहाँ भी डोमिनेट करते हैं और बहुत सारे करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो रिसेंट इवेंट्स जो हुए हैं वर्ल्ड के अराउंड, सब करंट अफेयर
अफेयर्स आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आप न्यूज़पेपर से प्रिपेयर करोगे प्लस नोट्स से प्रिपेयर करोगे। फॉलोइंग वेबसाइट्स लाइक अफेयर्स क्लाउड इज रियली गुड, यहाँ पे आप अफेयर्स क्लाउड फॉलो कर सकते हो। आप अनअकैडमी के क्विजेस फॉलो कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप क्विजेस दे सकते हो, डेटा पढ़ सकते हो, कंपेंडियम्स भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहां से वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लैट की तरह कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस यहाँ नहीं आते हैं। Your question will be one liner, there will be 4 options given, you have to select the right answer, there is no negative, so I would say कि सारे questions करके आना समझदारी रहेगी, ठीक है। करंट अफेयर्स पे फोकस करोगे, लगभग 1 ईयर की करंट अफेयर्स आपको अप्रोक्सीमेटली प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है। जो भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, कोई ऑबिचरीज है, कोई रीसेंट बुक है जो पब्लिश हुई है, कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स है, ठीक है, वो सारे आपको, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई समिट हो रही है अगर, ठीक है, कोई डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने होते हैं इन करंट अफेयर्स। अगर आप स्टैटिक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक प्रिपेयर करो। लाइक इफ यू आर रीडिंग अबाउट सम कंट्री, लेट्स से यू आर रीडिंग अबाउट यूक्रेन, सो यू शुड नो यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, वहां की करेंसी क्या है, वहां पे करेंटली क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहां पे कुछ ऐसा यूनिक जो उस कंट्री में हो। सो ये सब भी आपसे स्टैटिक के फॉर्म में पूछा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, द बेसिक अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सोशल साइंसेस भी अगर आपको पता होगा तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस सेक्शन, ओके। देन नेक्स्ट जो सेक्शन है, दैट्स अ मैथ्स सेक्शन। मैथ्स सेक्शन देखो सिर्फ 10 मार्क्स का होता है। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज मेनी स्टूडेंट्स थिंक हम इस सेक्शन को स्किप कर देते हैं बिकॉज दिस सेक्शन ओनली कंप्राइजेस ऑफ 10 मार्क्स। सो माय पर्सनल व्यू ऑन दिस इज, गाइस, डू नॉट स्किप द सेक्शन, ठीक है। यू शुड बेटर गो फॉर द मिडल अप्रोच, यानी आप 100% नहीं कर पा रहे हो तो स्किप भी मत करो, एक जो बीच की अप्रोच होती है वो फॉलो करो। Now most of you who are preparing for a CLAT, you might be preparing for maths also, right? Somebody who is preparing for other law entrance exams, you will also definitely prepare for maths, तो आप basic maths prepare करो, ठीक है, जैसे प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, पीएनसी, ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, नंबर्स एटसेट्रा, दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं। लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू प्रिपेयर कंप्लीट मैथ्स, अगर नहीं हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जनरल टॉपिक प्रिपेयर करो, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शंस हो गया, जस्ट सॉल्व फ्यू क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व 10 क्वेश्चन इन अ डे, ठीक है, या फिर 5 to 6 क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। यू कैन फॉलो लाइक 30 Day वंडर या RS अग्रवाल जैसे बुक्स आप यहाँ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब रेशियो प्रिपेयर करो, परसेंटेज प्रिपेयर करो, एवरेज प्रिपेयर कर लो। ये तीनों बेसिक चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के बाद स्टार्ट विद द चैप्टर दैट यू फील इजी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, या फिर मेंसुरेशन हो गया, या नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया। प्रिपेयर सच टॉपिक्स, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सॉल्व करना, लेट इट बी, प्रिपेयर जनरल एप्टीट्यूड टॉपिक्स, उसी में से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, और वहां से आप 10 मार्क्स का मैथ्स अगर नहीं भी कर पाओगे तो एटलीस्ट 5-6 मार्क्स कर लोगे, जिससे आपको एटलीस्ट कुछ, आपको जो आपका टोटल एग्रीगेट आएगा उसमें कुछ इंक्रीज हो जाएंगे आपके मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक अच्छी रैंक भी आने के चांस रहेंगे, जिससे कॉलेज, अच्छा कॉलेज, स्पेशली IILS इन पुणे जिसके कट ऑफ्स हाई जाते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर द सेक्शन। Then everyone, we have English. English को I will bifurcate into 3 parts, guys. ठीक है, the first part in English is our reading comprehension. ठीक है, this is reading comprehension or RC. Second part, everyone, is your vocabulary. ठीक है, एंड थर्ड पार्ट ओवर हियर कम्स एज ग्रामर। सो इंग्लिश में मैं 3 पार्ट्स में आपको ब्रेक करके बताऊंगी। नाउ somebody who is preparing for CLAT is already preparing for RC and vocab. The additional topic that you have to study is grammar, and if you are also preparing for ALET, eventually आपको ग्रामर तो प्रिपेयर करना ही होता है। ग्रामर में आपको प्रिपेयर करने चाहिए एरर्स, ठीक है, एरर्स के अलावा जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होते हैं ना, वोकैब में आपको प्रिपेयर करना चाहिए स्पेलिंग मिस्टेक का, ठीक है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग वगैरह आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज प्रिपेयर करने चाहिए, ठीक है। कॉमन एरर ग्रामर में काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, आई थिंक वो मैंने बता दिया। इनएप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड, इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट पर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपको यहाँ टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना होगा।
टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, ठीक है। इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच जरूर आपको पढ़ के जानी चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस क्लैट में, एलिट में, अपार्ट फ्रॉम दैट इन अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक एमएससीटी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। देन एवरीवन, द बुक दैट यू कैन फॉलो फॉर इंग्लिश इज रेन एंड मार्टिन, वन ऑफ द रियली गुड बुक्स, ठीक है। और एसपी बख्शी, अगर आप कॉम्पिटेटिव व्यू से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एसपी बख्शी इज वन ऑफ द बुक दैट यू कैन फॉलो फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अगर मैं मैथ्स की बात करती हूँ तो यू कैन फॉलो 30 डे वंडर हियर, ठीक है, या फिर आप फॉलो कर सकते हो आर एस अग्रवाल और अरिहंत, एनी aptitude book would work. Current affairs and GK के लिए I've already told you, newspaper plus notes will help you out. ठीक है, अब बात करते हैं हम लीगल रीजनिंग की। लीगल रीजनिंग में आपको बेसिक लॉस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे टॉर्ट्स है, क्रिमिनल है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ हो गया, तो इनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इंपॉर्टेंट एक्ट्स और लेजिस्लेशन पर आपको ध्यान देना चाहिए। जो भी लीगल करंट अफेयर्स होती है, ठीक है, लीगल करंट अफेयर्स is something that you should be studying. Apart from that, you should be studying Indian polity also. So this is legal reasoning, everyone. The book that you can follow over here is AP Bharadwaj, ठीक है, that is the book that you can follow, plus previous year questions. Now this is very important, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर सैम्पल पेपर, बिकॉज एमएससीटी के क्वेश्चंस बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, और यू कैन फॉलो द सैम्पल पेपर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, बिकॉज लीगल एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको चाहे क्लैट हो या एलिट हो या एमएससीटी हो या स्लैट हो, कोई भी एग्जाम हो, आई थिंक आपको प्री वाईक्यू जरूर सॉल्व करना है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. Then comes the last section, the logical reasoning section. Now, logical reasoning section can again be divided into two parts. One is your critical reasoning and another is your analytical reasoning. Now, if I talk about analytical reasoning, puzzle, blood relations, series, direction sense and distance हो गया, ठीक है। इसके अलावा एनालॉजी जैसे चैप्टर्स जो हो गए, वहां से कोडिंग डिकोडिंग इज वन ऑफ द चैप्टर जो यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स एक्सेट्रा ये आपसे एनालिटिकल रीजनिंग में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ क्रिटिकल रीजनिंग की, तो आर्ग्यूमेंट हो गया, आर्ग्यूमेंट से क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलते हैं। कॉज एंड इफेक्ट इज द चैप्टर, ठीक है। इसके अलावा कंक्लूजन हो गया, यहाँ पे कंक्लूजन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एजम्पशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बेसिकली द वर्बल पार्ट इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजनिंग एंड रेस्ट इज द एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन। सो वर्बल एंड एनालिटिकल दोनों आपको यहाँ पे पूरा करना होगा। प्रेफरेबली द बुक दैट यू कैन फॉलो इज आर एस अग्रवाल विच विल हेल्प यू आउट विद दिस एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पे दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द सेक्शंस, अब हम देखते हैं आपका क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्शन का, ठीक है। किस क्राइटेरिया के थ्रू यू कैन गेट सिलेक्टेड। नाउ एज यू नो, अब जो स्टेप्स हैं जिनकी अगर मैं बात करती हूँ, तो स्टेप नंबर 1 इज दैट यू हैव फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म, यू हैव गिवन द एग्जाम। आपके एग्जाम के बाद क्या आएगा, आपके एग्जाम के बाद एक आंसर की रिलीज हो जाएगी, ठीक है, एंड जिसके थ्रू आप, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। आफ्टर रेजिंग ऑल दीज ऑब्जेक्शंस गाइस, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, या फिर हम कह सकते हैं फाइनल कट ऑफ आ जाएगा। फाइनल कट ऑफ आने के बाद इफ आपकी पहली लिस्ट में नाम है, तो यू विल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग। सो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, या फिर अब तो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ठीक है, जिसमें यू विल फिल योर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ कॉलेज। आप अपने चॉइस ऑफ कॉलेज को फिल कर दोगे। नाउ यूजुअली एवरीवन, इफ यू आर अटेम्प्टिंग एमएससीटी, आई वुड सजेस्ट कि आपको पहली चॉइस में जीएलसी और या फिर आईएलएस, एनी कॉलेज, दूसरे में आईएलएस रखना चाहिए। नाउ दीज टू कॉलेजेस फ्रॉम एमएससीटी आर रियली गुड, ठीक है। इनकी लोकेशन इन एडवांटेज भी है, बिकॉज जीएलसी इज इन बॉम्बे, दैट इज मुंबई, ठीक है, एंड आईएलएस इज इन पुणे। सो दे दीज कॉलेजेस डू हैव लोकेशन एडवांटेज, दे आर वेरी ओल्ड कॉलेजेस, ठीक है। इनका जो एल्यूमिनाई बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत पुराना है। आपको यहाँ इंटर्नशिप्स मिलते हैं, अच्छे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, फीस कम है इन कॉलेजेस की। सो आई थिंक दिस इज समथिंग, एंड बोथ आर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस ऑल्सो। सो these colleges are something that you should keep in your priority list, ठीक है। तो जीएलसी और आईएलएस रखो अपनी चॉइसेस में, एंड देन अगर आपका पहली लिस्ट में हो जाता है सिलेक्शन, तो देन आपको कॉलेज में फी वगैरह सबमिट करना होगा, एंड कॉलेज के अकॉर्डिंगली आपको आगे गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे, ठीक है। अगर आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो यूजुअली 4 लिस्ट आती है, यूजुअली 4 लिस्ट आर देयर जो आती हैं, अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखते हैं। सो मैक्सिमम बाय 4 लिस्ट लॉन्च हो जाती है, उसमें भी हो सकता है कि आपका नाम आ जाए। Now everyone, after that it's important that we also discuss about the fee structure. So everyone, the current total of 5-year LLB that I'm showing you is around 10 to 12 LPA, 10 to 12 lakhs के आसपास होती है। Now this is basically including everything, ठीक है।
एवरीथिंग बोले तो इट्स लाइक ट्यूशन फी तो बहुत कम होती है कॉलेज की, लाइक इट्स अराउंड 50, ठीक है, 50,000 के आसपास ट्यूशन फी है, बट हॉस्टल एंड मेस चार्जेस जोड़ा लाइक जोड़ के, इसके अलावा कुछ फर्दर चार्जेस जोड़ के, ठीक है, ये फी लगभग इतना एक एग्रीगेट रेंज कर जाता है, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम विच विल गो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज अराउंड दिस फीस इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सिमिलरली अगर LLM प्रोग्राम की बात करते हैं, सो विद इन महाराष्ट्र यू कैन सी दिस इज अराउंड फी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग एवरीथिंग, दिस इज इंक्लूडिंग ट्यूशन, इंक्लूडिंग हॉस्टल। आप चाहो तो यहाँ बाहर भी हॉस्टल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि कैंपस में ही हॉस्टल लेना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करती हूँ, ठीक है, सो येस एवरी कॉलेज हैज स्कॉलरशिप ऑल्सो। सो स्कॉलरशिप में एवरीवन, नाउ दिस इज अगेन द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द कॉलेज। The college website has mentioned each and everything on their page, so it's good। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, my advice, go through the advice for go through the website for sure। now everyone, DHE पुणे माइनॉरिटी के जो इंटर्नशिप्स सॉरी स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अपंग स्कॉलरशिप्स आर देयर, स्वयंभू बेसिकली सेल्फ जो होता है ये ST स्टूडेंट्स के लिए है। देन इसके अलावा राजश्री छत्रपति साहू महाराज योजना के अंडर में भी यू कैन गेट दी स्कॉलरशिप, स्वधार योजना और गवर्नमेंट पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप्स, ये सारे स्कॉलरशिप्स हैं DHE पुणे, एंड इन सभी स्कॉलरशिप्स के गाइडलाइंस इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। नाउ इफ यू ओपन द पेज एंड इफ यू क्लिक ऑन एनी ऑफ दिस on their website, so यहाँ पे आपको सारी डिटेल along with the brochure मिल जाएगा, जिसको आप go through कर सकते हो if you want to apply for any kind of a scholarship, ठीक है। देन एवरीवन, अब आ जाते हैं हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एंड इंटर्नशिप्स पे। नाउ द प्लेसमेंट्स ऑफ दिस कॉलेज हैज बीन रियली रियली गुड। मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर जब वो इंटर्नशिप्स करने जाते हैं, बिकॉज द कॉलेज हैज मैंडेटरी इंटर्नशिप्स भी बहुत अच्छे लॉ फर्म्स में आपको मिल जाएंगी। अगर आप इंटर्नशिप करने जाते हो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 4th ईयर में ही उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिल जाते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर हु आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन 4th ईयर। द प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ द कॉलेज इज गुड। एवरेज पैकेज की अगर बात करी जाए तो समवेयर 5 लाख पर एनम से 15 लाख पर एनम के बीच में पैकेजेस मिलते हैं। देयर इज ऑल्सो पैकेज ऑफ 16 एंड 17। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो समवेयर 7 to 10 LPA के बीच में आपको एक पैकेज एवरेज मिल जाएगा। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में लगभग 60 to 70% स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं, बट रिमेंबर जैसे नंबर कम लग रहा हो, नॉट एवरीबडी सिट्स फॉर अ प्लेसमेंट, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी होती है या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी होती है। सो दे just don't go for the placement, everyone। There are also students who want to go for the further studies, so ये जो 60-70% आपको दिख भी रहा है, दिस इज अगेन अ गुड नंबर कंसीडरिंग ऑल द अदर पॉइंट्स। नाउ एवरीवन, इफ सम ऑफ द रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें, दीज आर सम ऑफ द रिक्रूटर्स, द लिस्ट इज रियली ह्यूज इफ यू ओपन द ब्रोशर एंड गो थ्रू द लिस्ट। और भी बहुत सारे पार्टनर्स हैं। नाउ दीज आर द फ्रीक्वेंट पार्टनर्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो अमरचंद मंगलदासन को, प्लेटिनम पार्टनर्स, जे सागर एसोसिएट्स, खेतान, ठीक है। सो देज आर बेसिकली द रिक्रूटिंग फर्म्स जो यहाँ पे इस कॉलेज से रिक्रूट करती हैं। दीज आर सम मोर फर्म्स एवरीवन। नाउ दीज आर द कॉर्पोरेट हाउसेज, जैसे HDFC देयर, बैंक्स हैं, आदित्य बिरला ग्रुप है, ठीक है। So ICICI is there, FinIQ is there, Deloitte is there. So these are all the corporate firms who hire lawyers from the college. Apart from that, guys, ठीक है, तो their placement record overall I would say is good, is very good, ठीक है। So something the college which you should consider. Then everyone आ जाते हैं committees in college के बारे में। So committees की अगर बात करी जाए तो you will get the committee like anti-ragging committee और anti-squad, grievance cell आपको मिल जाएगा, placement सेल उनका अलग से प्लेसमेंट सेल है, ठीक है। देन यू हैव इंटरनल कमिटी ऑन द सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑल्सो, अर्न एंड लर्न कमिटीज हो गए। सो ऑल द कमिटीज में योर faculty would be the head over here and they will be guiding you all. If you have any problem you can always connect with them, ठीक है। then guys, अगर हम events की बात करते हैं तो ILS में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारे और events भी होते हैं। now they do have a college fest, ठीक है, it is known as ICAM, district level legal aid fest है ये। and अभी presently for this year they had the theme आजादी का अमृत महोत्सव।
इफ आई टॉक अबाउट द कॉम्पिटिशन्स क्या क्या होते हैं यहाँ, तो नेशनल आईपीआर सेमिनार, पब्लिक लॉ कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओलंपियाड भी यहाँ पे हुआ था। देन यहाँ पे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स ऑन क्रिमिनल लॉ एंड वेरियस लॉज होते रहते हैं। देन सेकंड आईएलएस नेशनल ऑल्टरनेट जजमेंट राइटिंग कॉम्पिटिशन भी यहाँ हुआ था। एंड इसके अलावा भी फ्रीक्वेंटली होने वाले कुछ इवेंट्स हैं ये। सम मोर इवेंट्स की बात करी जाए तो यस, कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं, लाइक डांस एंड रैप एंड रिटोरिक, elocution, basically nukkad natak, discussion, etc, etc. Apart from that, guys, now this is a photo gallery where you can see different events happening. This legal ease is there, then student welfare department hai ye, then legal aid. All the pictures in the gallery is something available on the website also, तो आप go through कर सकते हो. Judgment writing competition, alumni meet, कॉन्वोकेशन हुआ, ऑब्वियसली जब आप पास होगे तो आपका कॉन्वोकेशन भी होगा, ठीक है. ओलंपियाड इज देयर, आईपीआर वीक इज देयर, CRPC इज देयर, ठीक है. पब्लिक लॉ कॉन्फ्रेंस हो गया यहाँ पे, यार लॉ ऑफ द सी हो गया. सो ऑल द इवेंट्स, जो ये सारे इवेंट्स कॉलेज में होते हैं जिनका आप पार्ट भी बन सकते हो. अगर अवार्ड्स और प्राइजेस की बात करी जाए तो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी यहाँ पे मिलता है, जिसका डिस्क्रिप्शन भी वेबसाइट पर बहुत डिटेल में अवेलेबल है. ये बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड 5 या LLB 3 LLB के लिए अलग अलग रहता है. यहाँ पे आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज पूरे करने होते हैं, जैसे कि आपका एकेडमिक अच्छा होना चाहिए, आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. ऑल द क्राइटेरियाज are given in the website as well. So everyone student best student award से मुझे student of the year भी याद आ जाती है. So guys, yes, you can also participate for this award. So I think that's all about ILS. I think I've covered everything, but still if you have any question, make sure to write in the comment section. Apart from that, अगर आपको specifically किसी कॉलेज के बारे में जानना है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ नए टॉपिक पे कुछ बताऊं, if there is something in your mind that जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहिए, make sure to write down in the comment section and I will get back to you with the session. Okay, so I hope you like this session. Make sure that you hit the like button, do subscribe to Unacademy Legal World as well, and thank you so much guys. You can also attend my special classes on Unacademy. बाकी आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं. Thank you so much. Have a nice day.